earn lot of money. So I never intended to be a architect. हम जब गवर्नमेंट को यहाँ बैठे बैठे क्रिटिसाइज करते हैं. A warm good morning from the Architect's Diary, and I am Simran Khare, the co-editor at the Architect's Diary, and we are here today in this beautiful studio of D6D, and we have with us architect Himanshu Patel. We are very glad to have you with us, sir. It is definitely going to be a really interesting conversation with you. So I want to start this conversation with taking you a little back to your younger days when you decided to pursue architecture as your career. So everyone has that one point in life where they, or a situation which they occur, and then we decide that this is what I want to pursue. So what was that point in your life when you thought architecture is what you wanted as your career? See, I came into architecture by accident only. So I never intended to be an architect. So I'll tell you a little bit about my past, that I was more inclined towards I was a nature lover, so animal lover. So I wanted to pursue my career into animal rescue. I wanted to join Discovery Channel. Okay. But somehow that was a kind of my hobby, that what I found out. But there is a difference between hobby and passion. Right. So it was not my passion, that I later on I understood that. And after 12th, I was looking for what is the actual profession we can go about. So somehow I accidentally I ended up with architecture. It was not my intention before. Okay. So like we as Indians actually draw a lot of inspiration from our families to choose what we want to do, or for the style of work that we want to pursue. So what was there, like a family influence on you which made you go into this style of architecture? Or yes, see, I would say actually before I was clueless that what sort of practice I should do. So I was very much curious about what are the things happening around the world, and why certain people are doing certain kind of practice, how they they have concluded their own practice style. So I was a very confused kid when I was in the college. I used to ask a lot of questions. तो मेरे प्रोफेसर लोग मेरे से तंग आ जाते थे. सो मैं सेटल होने वाले में से था नहीं, और बहुत ही कंफ्यूज रहता था. तो मुझे लगता था कि कंफ्यूज में इसलिए था कि मुझे क्लैरिटी चाहिए थी. एंड आई वाज ऑलवेज रनिंग बिहाइंड द नॉलेज रादर देन आउटपुट. राइट. तो मैं ये प्रैक्टिस में कैसा है वो मैं बाद में बताता हूँ. पर या कॉलेज में आई वाज नॉट अबाउट टू आई वाज नॉट श्योर दैट आई विल परस्यू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं करूँगा या नहीं. मोस्ट ऑफ द टाइम अभी लोगों का ये सिचुएशन था, मेरा भी वैसा ही था. तो बिल्कुल क्लियर नहीं था. और एक्चुअली तो मैं ब्राइट भी नहीं था कॉलेज में. मुझे तो केटी लगी थी, ईयर बैक लगा है. तो 6 साल के बाद मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. फाउंडेशन मेरा उस हिसाब से बहुत अच्छा रहा. सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू एक्सप्लोर द थिंग्स, एंड लेटर ऑन मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन के बाद यू कम टू अ पॉइंट वेयर यू गेट अ क्लैरिटी कि अब मुझे क्या करना है. देखो, एक चीज़ होती है, हमको कुछ अच्छा लगता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, पर अच्छा लगना इज़ नॉट इनफ. अच्छा बहुत सारी चीज़ों लगता है. जैसे मुझे फुटबॉल देखना अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, बट आई कैन नॉट परस्यू इट एज एन माई प्रोफेशन, क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं है, वो हॉबी है. तो पैशन मुझे बाद में समझ में आया है. आफ्टर ग्रेजुएशन भी नहीं समझा था. उसके बाद काफ़ी घूमने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए, और मैं यही कर सकता हूँ. तो आज मैं डेफिनेटली ये उन पे कह सकता हूँ कि अगर मैं आर्किटेक्ट नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता. Okay. That's a great story actually. And even in architecture, like once you got into after your education, so your work experience was really different. You were in the CM fellowship program, right? So how did that shape you as an architect or as an individual? That CM fellowship program was actually I
went into that program just because after doing all conventional practice, conventional jobs, I thought, I don't want to do it anymore. So I took a break, and when you are on the break, you can't sit ideally. So Right. at the same time, I thought that the same time this fellowship program came, and I went for the interviews, and somehow I cracked it. So मेरे लिए मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और कहाँ जाना है. I was like, let's explore everything. Right, right. Then we will conclude that what I really want to do. So मुझे लगता है कि हम लोग आज की जनरेशन में भी बहुत सारे, मैं इंटरेक्ट करता हूँ स्टूडेंट के साथ, तो दे कीप थिंकिंग what I should do. So I think by just thinking you can't end up with something. Right. You just start doing it. Whatever you feel, you just go and do it. नहीं समझ में आ रहा है कुछ और करो, वो नहीं समझ में आ रहा है कुछ और करो. तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ ट्राई किया. नॉट अबाउट दिस फेलोशिप प्रोग्राम, पर मैंने मेरे ख्याल से टेली कम्युनिकेशन में भी मैंने थोड़ा काम किया था. तो आई हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ जॉब्स. और फिर मुझे लगा कि ये सब के बाद मुझे समझ में आया कि यही मुझे करना है लाइफ में. तो उस हिसाब से फिर मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था तो CM फेलोशिप प्रोग्राम में गया. Okay. और वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि ग्राउंड रियलिटी पे क्या होता है. हम जब गवर्नमेंट को यहाँ बैठे बैठे क्रिटिसाइज़ करते हैं और वहाँ पे एक्चुअली उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना है. एंड इन इंडिया सच अ बिग पॉपुलेशन, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसमें कुछ भी करना इजी नहीं है. सो दैट आई रियलाइज दैट. और फिर मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें तो पेपर पे ही होती है, ग्राउंड वर्क पे कुछ होता नहीं है. उसका रीज़न बहुत सारे है. तो आई एम नॉट इनटू क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट. मेरे ख्याल से बोलना बहुत ईजी है, पर वहाँ जाके कुछ करना. तो मुझे वो मौका मिला था 1 साल के लिए कि मैं वहाँ सिस्टम में था. आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट सिस्टम एंड अंडरस्टूड लॉट ऑफ थिंग्स कि एक जो छोटा इंसान है उसकी क्या ज़रूरत होती है, और जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स है वो लोग उसको कैसे देख रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं. तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. और उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे खुद का भी समझ में आया कि मैं कभी गवर्नमेंट के साथ काम नहीं कर सकता. Right. तो उसके बाद आई नेवर डिड एनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट. तो क्योंकि उसका सिस्टम बहुत अलग है और वो सिस्टम में मैं फिट नहीं होता. पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. Okay. बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ मेरा. Right. और बहुत चीज़ें मुझे समझ में आई कि इट एक्चुअली मेड माय परसेप्शन ब्रॉडर. हाँ. तो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. Right. And considering architecture, it's a really dynamic field, and with the days passing by, we are getting so many styles of architecture, then previous styles are coming back. So how did you choose to practice vernacular architecture in this really, really crazy modern world that is like going so fast? Very good question. First of all, I don't see this vernacular architecture as a style. For me, it is an attitude towards life. So I don't see it as a style, but just for understanding, we can say it as a style. Right. For me, this vernacular architecture goes through a common sense. It's so the common sense word that is very important for me. Just you give anything, any name. It doesn't really to be vernacular architecture. So mostly to understand this, we need to understand what is vernacular. Right. So it is all about local, it is all about contextual. और मुझे लगता है कि इंडियन आर्किटेक्चर आज नहीं, सालों से contextual ही है. अभी भी contextual होना चाहिए, अगर नहीं है तो. Right. तो मेरा कोई ये प्रैक्टिस है वो, इट इज़ नॉट अबाउट माई ग्रैनी स्टोरी, जो पुराना जो है वो यहाँ पे करना. इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ अबाउट कि अभी जो है कंटेक्चुअल जो है करंट सिनारियो है, उसमें हमारे कंटेक्स्ट को समझ के हमारे सोशल नीड्स, कल्चरल नीड्स, इकोनॉमिकल नीड्स, ये सबको कैसे इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. और ये सारे प्रॉब्लम्स जितने भी है उसका मुझे सॉल्यूशन दिख रहा है वर्नाक्युलर आर्किटेक्चर. तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि थ्रू द कॉमन सेंस दिस इज़ द राइट वे टू डू दिस प्रैक्टिस. और शायद दैट इज़ द वेरी सिंपल थिंग वी कैन डू इट. डेफिनेटली. Also to the kind of structures you've built, they are really inspirational, to be very honest.
and to design such structures you need some inspiration. So do you have like some hobbies or interests which inspire you to do this, to design your buildings, or how do you go with the design process? See, this process is, it is not defined basically, because when you are doing such kind of practice, my actual inspiration is villagers. Right now, what we are sitting in the village context. Yes. Why villagers? Because most, I have spent lot of time, my childhood time I have spent in villages only. तो मेरे ख्याल से कोई आर्किटेक्ट कुछ भी कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसने पूरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किए। तो मैंने बहुत सारा टाइम तो गांव में निकाला। गांव में जब मैं था तो मैं देखा कि लोग खुद ही बिल्डिंग बना रहे हैं, उनको आर्किटेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब वो खुद बिल्डिंग बना रहे तो क्या सोच के बना रहे हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, ये सब चीज़ें मुझे एक्चुअली आर्किटेक्चर करने ग्रेजुएशन के बाद समझ में आई। पर तभी भी मुझे इंटरेस्ट था, पर मुझे समझ नहीं आता था कि इसका डेफिनेशन क्या है, वोकेबुलरी में उसको कैसे लेकर आया जाए। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि जब ये लोग काम कर रहे हैं तो बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उनका मेन पर्पस है कि बिल्डिंग एक तो सबसे पहले सस्ते में सस्ता कैसा बने। तो आजू बाजू के जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो यूज़ करेंगे। दूसरा उनका ये होता है कि ये मजबूत कैसे बने। एस्थेटिक इज़ नॉट अ कंसर्न, जो हमारा आर्किटेक्ट्स का सबसे फर्स्ट कंसर्न होता है कि हम उसको ब्यूटीफुल कैसे बनाएं, तो उनका वो कंसर्न होता ही नहीं है। तो मेन कंसर्न ये होता है, और वो मैंने देखा है कि वो फालतू की कोई भी चीज़ नहीं करते। दे विल डू परफेक्टली वॉट एवर नेसेसरी। तो मुझे समझ में आया कि गांव के रूफ स्लोपिंग रूफ के, बिकॉज उनका कॉमन सेंस है कि अगर पिच रूफ है तो पानी चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, यू डोंट नीड एनी वाटर प्रूफिंग थिंग, कुछ भी नहीं। तो मुझे आई एम वेरी मच आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस काइंड ऑफ विजडम, जो मुझे गांव के लोगों में ही दिखा, मुझे और कहीं नहीं दिखा ये विजडम। एंड देन आई थॉट दैट आई शुड रियली लर्न फ्रॉम देम। तो मैं गांव में बहुत सारे गांव में जाता हूँ, आज भी लोगों को पूछता हूँ कि दादाजी ये क्यों ऐसा बनाया, वो कैसे बनाया। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें तो उनसे सीखने की मिली, और जो मैंने एक्चुअली में कॉलेज में सीखा था वो सब अनलर्न करने में बाकी का टाइम गया। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये प्रैक्टिस बहुत सिंपल है। आपको लग रहा है कि मैं बहुत ही कुछ अलग कर रहा हूँ, पर आई थिंक आई एम डूइंग वेरी सिंपल थिंग। और उसका रीज़न मुझे सिंपल मैं अच्छे से इसलिए कर पा रहा हूँ कि आई एम वेरी ऑनेस्ट विद वॉट एवर आई एम डूइंग, और वो ऑनेस्टी मेरे ख्याल से मैं विलेजर्स से ही सीखा हूँ। राइट। Actually, the villages teach you a lot. So when you go back to your roots, you really understand what we are supposed to do as humans in general. True. But that's like architects understand this perspective because we have this knowledge, I feel. But then how do you convince the clients, because that is also a task nowadays? It's very big task. See, मुझे लगता है कि देयर इज़ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। वी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर्किटेक्ट्स हैव आवर ओन फैंटेसी कि हमको ऐसा बिल्डिंग बनाना, वैसा बिल्डिंग बनाना, इट शुड बी मॉन्यूमेंटल, इट शुड लुक वेरी क्रिएटिव। पर मुझे लगता है कि वी आर नॉट डूइंग एनी आर्ट थिंग, वी आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो व्हेन क्लाइंट कम्स विथ इट ऑलवेज कम विथ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, तो मुझे लगता है कि वो जो प्रॉब्लम उसको हमको सॉल्व करके देना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि सारे क्लाइंट के पास एक चीज़ तो कॉमन है, विच इज़ इकोनॉमिकल। राइट। शायद ही 1-8% कोई क्लाइंट ऐसा होगा जिसको वो आपको बोले कि सिमरन जी आपको जो बनाना है बनाओ, जितने पैसे लगने लगाओ, ऐसा कोई नहीं है। तो मुझे समझ में आता है कि नॉट ओनली क्लाइंट, ये पूरा इंडिया इकोनॉमिकल एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एड्रेस दैट वेरी वेल। मुझे मेरे ख्याल से मेरा आर्किटेक्चर का यूएसपी वही है कि आई डू इट वेरी इकोनॉमिकली। और वो इकोनॉमिकल इसलिए हो रहा है कि मैं चीज़ों को बहुत सिंपली देख रहा हूँ, उसको बना भी उतने ही सिंपल तरीके से कर रहा हूँ। तो दैट इज़ वन थिंग। दूसरा चीज़ ये है कि जब क्लाइंट को आपको समझाना है ना, योर क्वेश्चन वॉज दैट कि हाउ यू मेक देम अग्री। तो आई रियली डोंट मेक देम अग्री, बट जब आप खुद किसी चीज़ में बिलीव करते हो 100% कन्विक्शन के साथ कि यही सही है, तो आपको उसको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। मोस्टली क्या होता है कि हम खुद ही कंफ्यूज है कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा,
तो जब आप वो स्टेट में हो ना, तो आप दूसरों को अच्छे से नहीं समझा पाओगे, उसको अग्री नहीं कर पाओगे। और मेरा क्लाइंट है ना बहुत ही मतलब एक स्पेसिफिक है कि क्योंकि मैं सब कुछ नहीं करता, यू नो, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट यू नो आई कैन डू माय बेस्ट। तो मुझे मेरे ख्याल से क्लाइंट लोग मुझे ढूंढ के आते हैं कि भाई हमको ऐसा चाहिए और ऐसा ऐसा करना है। उनका एक रिक्वायरमेंट होता है कि हमेशा सस्ता होना है, तो दैट इज़ समथिंग यू आई कैन डू। और फिर आई हैव ऑल द फ्रीडम। मैं जब क्लाइंट के साथ काम करता हूँ तो मैं आई ऑलवेज मेक श्योर कि आई हैव ऑल द फ्रीडम्स। मैं उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अच्छे से समझूँ और उसको सॉल्यूशन दूँ, पर कैसे देना है, क्या करना है, इट इज़ आवर जॉब मेरे ख्याल से। तो दैट फ्रीडम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इजी टू डू एनीथिंग। Actually, your company logo and the name itself is really unique, and like it makes one person think, why is this the name? So, what is the story behind having your logo as well as the studio name? देखिए, जब कुछ काम नहीं होता ना, तब हम लोग ये सोचते बैठते हैं कि हमारा स्टूडियो का नाम क्या होगा, चाय की टपरी पे मोस्टली, जब अपने पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट है तो हम काम करते हैं, ये नहीं सोचते कि नाम क्या होगा। तो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि नाम क्या होगा, यू नो, मेरा फोकस था कि काम क्या होगा। तो आफ्टर यू नो डूइंग सर्टेन वर्क, मुझे समझ में आया कि माई होल यू नो दिस आर्किटेक्चर इज रिवॉल्व्स अराउंड यू नो बीइंग हैप्पी। क्योंकि मेरे ख्याल से सबका एंड गोल तो वही है ना, खुश होना। चाहे वो क्लाइंट हो या मैं हो, आप हो, कोई भी हो। तो हैप्पीनेस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, यू नो, बिहाइंड डूइंग दिस प्रैक्टिस। और आई ऑलवेज मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट जब बन रहा है तो मैं जितना खुश हूँ उतना ही मेरा क्राफ्ट्समैन भी खुश है, मेरे लेबर्स भी उतने खुश हैं और क्लाइंट भी उतना खुश होना चाहिए। तब जाके ही ये यू नो इंटरेस्टिंग बन सकता है। फिर लोगो था तो वो उस टाइप पे ये 3D ये सब बहुत नया नया आया था, 2D 3D सब चल रहा था। तो आई थॉट कि इसके बाद का क्या हो सकता है, कौन सा और डायमेंशन हो सकता है। तो देन यू नो आई थॉट कि मुझे समझ में आया कि 4D भी है, 5D विद द टाइम। So this is my own, you know, my own fantasy. This 6D, sixth dimension, dimension to measure the happiness. Okay. So it's like that only. Okay. You know? There is not a specific reason. But लोगों का एक reason है कि जब मैं happiness की बात कर रहा हूँ तो snail मेरे लिए वो tiny चीज़ है जिसको लोगों ने ignore किया है mostly. क्योंकि वो बहुत tiny है, बहुत slow चल रहा है। तो मुझे मेरा प्रैक्टिस भी वैसा ही कुछ है। मुझे समझ में आया कि यू नो हम भी बहुत आराम से काम कर रहे हैं। दूसरा कि बहुत ही हम फोकस्ड है। तो स्नेल को आप देखोगे तो ऐसे ही फालतू का इधर उधर नहीं जाएगा, उसको मालूम है कि कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है ना। वो वहाँ जाके पता चला अगर यहाँ तो आना ही नहीं था तो मुश्किल हो जाएगी। तो दैट इज़ वन थिंग। और आप स्नेल को जब भी देखोगे कार्टून में तो इट विल बी ऑलवेज हैप्पी, है ना। तो हमारे लिए हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स हाउ यू नो आई केम टू अ कंक्लूजन अबाउट दिस। राइट। एंड फॉर एनी पर्सन अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, एज यू सेड कि क्लाइंट भी खुश होना चाहिए, हम भी खुश होने चाहिए। सो दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन टू कीप गोइंग विथ व्हाट दे आर डूइंग। So apart from project completion, what is that point in the whole project where you feel you're satisfied with what you've done for the community, for the society? Okay. सी मेरे लिए कम्युनिटी सोसाइटी वही है जो क्लाइंट है। मैं उसको अलग नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लगता है कि कोई मेरे पास आ रहा है कुछ यू नो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेके, उसको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरा ही जवाबदारी है वो देना उसको। अब वो पूरे प्रोसेस में माई ओनली थिंग इज़ यू नो आई डोंट हैव इन माई माइंड कि एंड रिजल्ट ये है। तो मेरे लिए जर्नी प्रोसेस वो बहुत इंपॉर्टेंट रादर देन द आउटकम। आउटकम ना तो मुझे मालूम होता है ना तो क्लाइंट को मालूम होता है, ये बेस्ट चीज़ है इसकी। एंड तक हम दोनों को नहीं पता होता है कि होना क्या है इसमें। तो ये मज़ा है ना इसी चीज़ का है, प्रोसेस का है। आपको जब शुरुआत से यू नो कुछ चीज़ पता है कि यही आउटकम है, तो मुझे लगता है इट्स वेरी पेनफुल, वेरी डिफिकल्ट कि 1.5 साल तुम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें तुमको पता ही है कि एंड रिजल्ट तो ये है। तो मुझे एक्साइटमेंट, मुझे मज़ा वहाँ से मिल रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट में ना तो मुझे कोई आइडिया है कि क्या हो रहा है, ना तो क्लाइंट को आइडिया है। तो
वो प्रोसेस कोलैबोरेटिव है, इट इज़ नॉट माय डिज़ाइन। आई वुड से कि उसमें कभी भी डिज़ाइन चेंज हो सकता है, कभी भी मैं किसी के भी इनपुट्स को एप्लीकेबल करता हूँ उसमें डिज़ाइन में, और फ्री होता है, तो उसमें हर पल मज़ा आता है हमको। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। And so how do you go with chasing or getting the right agencies for the work that you want to be done? So इतना अभी vernacular में हो या people are actually losing the skilled labor is actually a big task nowadays. So how do you get the right people to help you get done with the project? इसमें दो चीज़ हमको समझनी चाहिए। एक तो मेरे ख्याल से आपने बहुत सही कहा कि स्किल लेबर्स नहीं है, राइट। पर वो स्किल लेबर्स इसलिए भी नहीं है कि उसका जिम्मेदार हम लोग ही है ना। वी आर द, हमारी फैटर्निटी ने स्किल लेबर्स बनाना बंद कर दिया है। कैसे बंद कर दिया है कि वी ऑलवेज वांटेड टू डू एवरीथिंग वेरी फास्ट, फटाफट, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, राइट। तो मुझे लगता है कि अब जैसे आप बिल्डिंग देखोगे अर्बन एरियाज़ में इतने ख़राब बन रहे हैं, मतलब मैं वहाँ जाके उसको बोलता हूँ कि ये दीवार में आपने जो भी मॉर्टर किया है उसमें तो बहुत सारा गैप है ना, मैं उंगली पूरा घुसा सकती हूँ। तो वो बोलता है कि सर कल इस पर प्लास्टर हो जाएगा, है ना। मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, राइट। वो मेसन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो अच्छे से काम करे। वो बोलता है सर इस पर कल प्लास्टर हो जाएगा, वो ऐसे भी नहीं दिखना है। प्लास्टर वाला भी इतना ही खराब प्लास्टर करता है। मैं उसको बोलता हूँ यार प्लास्टर तो देखो तुम ये सीधी लाइन में ही हो, मैं अर्बन एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। तो उसका ये कहना है कि कल को पे इस पर पुट्टी लगना है, प्लास्टर को कलर वलर करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड तक पूरे प्रोजेक्ट में वर्कमैनशिप हो ही नहीं रही है। द ओनली रीज़न इज़ कि जो वर्कमैनशिप मतलब जो काम कर रहे हैं ना, उनका खुद का कोई आउटपुट दिख ही नहीं रहा है। तो वो क्यों कर, उनको मज़ा नहीं आ रहा है वो काम करने में, उनको बिल्कुल नहीं मज़ा आ रहा प्लास्टर करने में, उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ब्रिक वर्क करने में। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि उनको इंटरेस्ट आए, वैसे हमको बिल्डिंग डिज़ाइन करने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और वो डिज़ाइन तभी होगी जब हम उनको साथ लेके वो डिज़ाइन करेंगे, सिर्फ अपनी फैंटेसी करेंगे तो नहीं होना है। तो इफ यू विल सी दिस दिस एंटायर आर्किटेक्चर, सो बहुत सारे इनपुट्स उनसे मैं लेता हूँ, वो एक पार्ट है ये डिज़ाइन का। और जब आप जब ये लोग इतना कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो रोज़ शाम को इसके फ़ोटो निकालते हैं अपने फैमिली में भेजते हैं कि देखो मैंने आज ये बनाया है, देखो मैंने आज। तो ये प्राउड जो फीलिंग आनी चाहिए ना उनको, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है आज के आर्किटेक्चर में। अगर वो हम लेके आएंगे तो मेरे ख्याल से स्किल इज़ नॉट द प्रॉब्लम। राइट। और उनको थोड़ा हमको रिस्पेक्ट देना चाहिए, स्किल उनको मज़ा आए वैसा भी थोड़ा इनकॉर्पोरेट करना चाहिए डिज़ाइन में। बाकी स्किल इज़ नॉट द प्रॉब्लम। और जैसे जैसे हम इतने मंडेन आर्किटेक्चर करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से स्किल ख़त्म ही हो जाएगी। राइट। तो वो तो हमारी फैक्टर्निटी पे है कि कैसे करें। और अभी का ट्रेंड ऐसा है कि ये आर्किटेक्ट डिज़ाइन एनीथिंग ऑन, देन वी डिपेंड ऑन समवन कि कोई आके इसको बना दे। तो मुझे लगता है कि हमको खुद भी इसमें थोड़ा हैंड्स ऑन चीज़ें करनी चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए कि एक्चुअली उनका भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत चीज़ें मुझे ऐसे समझ में है कि मैंने खुद ये मेसनरी वर्क किया, तब मुझे समझ में है कि ऐसा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें ये हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा पहले तो स्किल होने की ज़रूरत है। हम हो जाएंगे तो दूसरे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। डेफिनेटली। एंड दीज वर्नाकुलर स्ट्रक्चर्स या ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर में जाओ जहाँ पे लोकल मटेरियल्स यूज़ किए, यू ऑलवेज go back to your like a nostalgic feeling आता है जब we visit such places. So like in all of the works you've done, did you experience such a space which made you reminded you of your childhood or the past? Yes, of course. मेरे ख्याल से मैं जो भी कर रहा हूँ वो सारा वहीं से आ रहा है। तो मैं वहाँ पीछे नहीं जा रहा हूँ, मैं एक्चुअली उसको आगे लेके आ रहा हूँ। राइट। You will see that that in that wall there is stars. Yes. तो वो हम किताब में ड्रॉ करते रहते थे without taking our hand up. Yes. तो वो चीज़ मैं इधर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस को ही मैं बाहर निकाल रहा हूँ। और इट्स वेरी इजी, दैट इज़ व्हाट आई से कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो कुछ यूनिक नहीं कर रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल। पर ये सिंप्लिसिटी कब आएगी जब आप ऑनेस्ट हो जाओगे चीज़ों के साथ। व्हेन यू डोंट रियली वांट टू impress someone or you really want to do something which is very unique, जो है उसको अच्छे से करो, that's it. Right.
और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे. And now, so the young architects जो pass out हो रहे हैं, they are, as you mentioned in previously, they are really confused कि करना क्या है exactly. That is, I think, confusion is a very common thing you have after graduation. But there are even people who want to do certain things. They want to pursue this kind of architecture, but because of some issues, like to be very honest, because of the pay issues, people are quitting architecture altogether. Like I've seen this trend going on. So do you have any like advice for them as to how they can stick with it? Or Yeah, this is actually burning question. मुझे लगता है कि we need to understand this profession. This profession is not for just for money or just for survival, because it has a power to change others' life. When you have such powers, you have also at the same time responsibility, great responsibility. तो मुझे लगता है कि हमको ये समझना चाहिए कि ये प्रोफेशन में हमको परस्यू क्यों करना है. अगर आपको वो समझ में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से बाकी के जो प्रॉब्लम्स है वो उतने बड़े नहीं है, यू कैन इजीली हैंडल इट. अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा फैमिली, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्रू दिस प्रोफेशन वी अर्न लॉट ऑफ मनी, which is also possible, but it is not quite easy to do it in the initial stage. मेरे ख्याल से उसमें बहुत टाइम लग सकता है, पर वो लगे ना लगे, मुझे लगता है कि ये हमारा एम होना ही नहीं चाहिए थ्रू दिस प्रोफेशन. It was a really insightful conversation with architect Himanshu Patel in his beautiful studio, which left us in complete awe. I hope that this video reaches the confused students and architects to help with their course of career. I'm thankful to Himanshu sir for sparing out time from his busy schedule for us. We hope people will be benefited from this conversation, and that is the motto with the Architect's Diary and Tadpod, to reach out to such game-changing architects and taking their stories, which really matter the most. Thank you.